کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، تمہیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام مچ چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابر توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈری وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، بسم اللہ کا حکمت، کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹا پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبریل نے یوں ہاتھ میں سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح، اندر سے یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں ٹکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھی، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا،
कहीं और सूरत सुबहान से शुरू नहीं होती। सुबहान का क्या मतलब है यहाँ? पाक पाक। लेकिन यहाँ क्या कहना चाहता अल्लाह ताला कि ये जितने कानून हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जोलॉजी के, बायोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के, ये जितने उसूल हैं आग पानी मिट्टी हवा के, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा रब सुबहान है, पाक है, इससे बालातर है। वो ये देखो तुम्हारे सारे कानून तोड़कर अपने नबी को ले जा रहा है। अल्लाह लेकर गया। कुरैश कहने के तू कैसे जा सकता है, एक रात में कैसे जा सकता है? तो अल्लाह ने जवाब दिया ये नहीं गए, मैं लेकर गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, असरा कहते हैं रात का चलना। इसमें क्या पैगाम है कि जिसने भी अल्लाह को ढूंढना है रात का कुछ वक्त अल्लाह को दे। जिसने भी अल्लाह को पाना है रात का, जितना वक्त आप कंप्यूटर पे बैठते हो उसमें से सिर्फ 10 मिनट अल्लाह को दे दो। वजू करो, नफल पढ़ो, 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, बड़े सोच 2 ही पढ़ लो कि नाम तो आ जाए, नाम तो आ जाए कि हाँ ये भी रातों को जागने वाला था, ये भी उठने वाला था। रात का सफर इसलिए है कि रात सुकून की चीज है और रात के सफर में पैगाम है कि अल्लाह को पाने का यही रास्ता है, यही रास्ता है। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। हमारे शायर इकबाल ने कहा था कि अगर अल्लाह को पाना है या जो भी पाना है तो रातों को रोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। बिस्तरों पर दराज रहकर ये चीज नहीं मिलती। रात का सफर बेअब्दिही, अल्लाहु अकबर, ये इज़हार मोहब्बत है। ये कौन है? कभी ये फलां पार्टी का बंदा, ये कौन है? ये फलां पार्टी का बंदा। ला इलाहा इल्लल्लाह। और तुम्हें पता नहीं ना फलां पार्टी का बंदा, फिर मुंह तेरे इस बोलदा। हाँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये सबसे बड़ा टाइटल है। तो अल्लाह ने रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, कहा बेअब्दिही, ये मेरा बंदा है। हुकूमत अपने बंदे को वजीर बना देगी, सेक्रेटरी बना देगी, और कोई ना लो चलो मुशीर बना दो, विला कम खजाने दा लुट पा दो, मुशीर बना दो। सियासी रिश्वत, मुशीर, भावे सारी जिंदगी दा मुंह ना वेखे, मुशीर। और ऐसे मुशीर हैं जिनको पता ही नहीं कि मशवरा कहते किसे। तो हुकूमत नवाजती है ना, ये नया नया तेल निकला ना, नया नया तेल, थोड़ा दौलत, तो एक बड़े रईस का नौकर, उन्होंने कहा इसको नौकरी लो। अनपढ़, उन्होंने कहा बुरा, उनका भाई अब बड़े रईस का फरमान है नौकरी पे तो रखना है, सादा कोई सौखा सा इंटरव्यू लो। हाँ भाई इस्माइन जमा इस्माइन कम, हाँ भाई 2 और 2 कितने होते हैं? उन्होंने कहा 5, हाँ ठीक है, करीब करीब जवाब ठीक है, रख लो नौकरी पर। जवाब करीब सिर्फ 1 का फर्क। तो हुकूमत क्या करेगी? तुम्हें नौकरी दे देगी, वजीर बना देगी, सदर बना देगी, और क्या करेगी? तो मेरा अल्लाह कहता है तो ये तो मेरा बंदा है, मैं कायनात को गुलाम बना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, ये मैं अपने, ये मेरा बंदा है तो मैं देखो इसको उठाता हूँ। ओ मेरे बच्चों, आइडियल अपने नबी को बनाओ, उनके पीछे चलो तो अल्लाह तक पहुंचोगे। दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ के आएगी, अल्लाह की कसम जलील होकर आएगी। न तुम्हारा ईमान बिकेगा, न जमीर बिकेगा, और दुनिया तुम्हारे पहुंचाटेगी। अगर ईमान बेच दिया, जमीर बेच दिया, अल्लाह की कसम कुत्ते से पत्थर जिंदगी होगी। हाँ बेअब्दिही, बहुत बड़ा टाइटल, बेअब्दिही, मेरा बंदा, मेरा बंदा, मैं अपने बंदे को ले जा रहा हूं। अलिफ और बा, असरा बेअब्दिही, असरा कहो तो बा की जरूरत नहीं, बेअब्दिही कहो तो अलिफ की जरूरत नहीं। असरा के साथ अलिफ, अब्द के साथ बा का मतलब है कि अल्लाह फरमा रहे मैंने बुलाया, मैं लेने आया हूं, मैं लेने आया हूं। ओ परवाज़, खला में जाने का पहला तस्वर मेराज के किस्से ने दिया। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहला आसमान, आदम अलैहिस्सलाम, मेरे बेटे आ गए, मेरे भाई आ गए, नबी आ गए। दूसरा आसमान, यहया, जकरिया, ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। तीसरा आसमान, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। चौथा आसमान, इदरीस अलैहिस्सलाम,
मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। पांचवा आसमान हारून अलैहिस्सलाम, भाई आ गए, नबी आ गए। छोटा आसमान यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाई आ गए, नबी आ गए। सातवां आसमान, एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, इस्तकबाल किया है, एक रिवायत। दूसरी रिवायत शिफा, काजिश अयाज की किताब शिफा। दूसरी रिवायत, आप सातवें आसमान पर गए तो एक बैतुल्ला है, बैतुल्ला का तवाफ हो रहा है, और एक बड़े मियां सफेद दाढ़ी बैतुल्ला के साथ टेक लगा के यूं बैठे हो। ये बाबा जी क्यों नहीं उठे? ये उम्मत को रिश्तों की कदर समझानी है कि बेटा नबूवत पर भी पहुंच जाए तो बाप के लिए बेटा ही होता है, और बाप के आगे झुकना उसकी नबूवत के शान को बढ़ाता है, घटाता नहीं। एक रिवायत है इस्तकबाल में खड़े थे, वो भी है। एक रिवायत जो दूसरी भी है कि वो यूं बैठे हुए हैं, जब करीब हुए तो आप खड़े हुए। बाकी नबियों ने कहा भाई आ गए, नबी आ गए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा आ गया, नबी आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। किसी नबी ने चूमा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले लगा के माथा चूमा, माथे का बोसा लिया। किसी नबी ने हमें सलाम नहीं भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अटक गए, या रसूल अल्लाह बॉर्डर आ गया, बॉर्डर, आगे वीजा कोई नहीं, आगे वीजा कोई नहीं। एक बारिश तो पर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। आप जाने और आपका रब जाने। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم आसमान का सफर बताती है, सूरह इसरा जमीन का सफर बताती है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अच्छा, अब ये जाते हुए हुआ या आते हुए हुआ ये वजाहत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा था ले नूरियहु मिन आयातिना, हम अपने हबीब को अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं। तो ये जिब्रील के साथ आपने कुछ मनाजिर देखे, इसकी वजाहत शायद किसी किताब में हो, मेरी नजर से ना गुजरने का मतलब ये नहीं कि है नहीं, हो सकता है हो, मैंने नहीं देखा। आपने मुख्तलिफ मनाजिर, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अज़ाब, मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आपने देखा। एक शख्स सोया हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में पत्थर है, उसके सर के ऊपर मारता है, उसका सर कीमा हो जाता है, पत्थर लुढ़क के यूं चला जाता है, वो उसको उठाने जाता है, इतने में उसका सर ठीक हो जाता है, वो आकर फिर उसको मारता है, फिर उसका सर कीमा हो जाता है। आपने फरमाया ये कौन है? कहा ये वो है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था, जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। फिर आपने देखा कुछ लोग हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, मर्द औरत नंगे, और नीचे से आग उनको जला रही। आपने फरमाया ये कौन है? कई वो हैं जो रोजा छोड़ देते थे, जो रोजा नहीं रखते थे। अभी गर्मी का रोजे आ रहे हैं, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, गर्मी और सर्दी के साथ अल्लाह आजमाता है। मेरे अजीजों जवान रहो, रोजे न छोड़ना, ये अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा अमल है। हर अमल की जजा जन्नत है और रोजे की जजा अल्लाह खुद है। अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, मेरे अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद हूँ। काम छोड़ देना, थोड़े कर लेना, काम थोड़ा कर लो। इन यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ पढ़ाई थोड़ी कर दो बच्चों की, आपसे कहता हूँ अपने काम थोड़े कर दो, अपने नौकरों की ड्यूटी थोड़ी कर दो, सबको रोजे के लिए तैयार करो, खुद रोजा रखो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा।
तो आपने एक तंदूर देखा, तंदूर बहुत बड़ा, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें और उनकी चीखों पुकार और आग के शोले उनको यूं उठाते 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 तंदूर के मुंह तक लाते हैं। फिर आग के शोले एकदम नीचे बैठते हैं और वो कलाबाजियां खाते हुए पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरते हैं और फिर चीखते चिल्लाते हैं। फिर आग उनको उठाकर यहाँ लाती है, फिर गिराती है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरतें। आगे चले, आपने देखा कुछ लोग हैं जिनके फरिश्ते यहाँ से ना कैंचियां डाल के चीरते और यहाँ तक ले जाते, यहाँ तक ले जाते, यहाँ तक ले जाते। उठी हुएगा फिर चीरते हैं, फिर चीरते हैं। कहिए कौन है? कहिए उम्मत के फसादी खतीब हैं जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को तोड़ दिया। फिरका वारियत की आग, फिरका वारियत की आग। आगे गए तो देखा एक आदमी बड़ा बेहतरीन खाना पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक गली सड़ी मैयत पड़ी हुई है। वो उस मैयत का गंदा गोश्त खा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा। आपने कहा ये कौन? कहा ये गीबत करने वाले, जो गीबत करते थे ये वो हैं। आगे गए तो आपने देखा एक आदमी आग खा रहा है, आग के अंगारे खा रहा है, आग के अंगारे, और चीख भी रहा है, खा भी रहा है। हम कहा ये कौन है? कहा ये हराम खाने वाले, ये हराम खाने वाले, ये यतीम का माल खाने वाले, ये यतीम का माल खाने वाले। आगे चले तो आपने देखा एक आदमी का पेट है गुंबद की तरह और पेट के अंदर सांप नजर आ रहे हैं जो अंदर से काट रहे हैं, अंदर से वो थोड़ा पूरा है, चीख रहा है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये सूद खाने वाले, ये सूद खाने वाले। आगे चले और एक खौफनाक मंजर देखा। आपने देखा कुछ लोग हैं इनका थड़ इंसानों वाला है, चेहरा सूअर जैसा है। दुआ दोस्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी तुफैल अल्लाह दुनिया में पर्दे डाल रहा है, अगर उनकी दुआएं न होती तो अल्लाह दुनिया में कर देता, ये दुनिया में कर देता। अल्लाह ने पहलों को खिंजीर भी बनाया, बंदर भी बनाया। उनका यहाँ तक चेहरा सूअर, नीचे इंसान। आपने कहा ये कौन है? जिब्रील ने कहा झूठी गवाही देने वाले, झूठी गवाही देने वाले। हाय कोई जाके लाहौर की अदालतों में चीख चीख के मेरा ये बोल सुना ले। आए कोई जाकर पूरे देश में ये चीख चीख के बोल सुना ले कि मेरा देश झूठे गवाहों से भरा पड़ा है। गवाह बिकते हैं, जोड़ी मर्जी गवाही ले लो, जोड़ी ले लो, जोड़ी मर्जी गवाही ले लो, पैसे मुकाओ तो गवाही लो। ये होने वाला है, मेरे नबी आंखों से देख कर आए हैं, देख कर आए हैं। फिर आपने खौफनाक फरिश्ता देखा जो पैर से संजीदा बैठा है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जहन्नम का फरिश्ता मालिक। फिर एक हसीन मुस्कुराता चेहरा देखा। आपने कहा ये कौन है? फरमाया, अर्ज किया ये जन्नत का फरिश्ता रिजवान, कि जहन्नम की सैर की। कट शॉट करता हूं, टाइम आगे जा रहा। फिर अब जन्नत को देखा। हाँ मैंने देखा तो एक लड़की चश्मे पर वजू कर रही थी, वजू, और उसके सब्ज रंग के जूते भी तस्बीह पढ़ रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा बेटी कौन हो? कहा जी मैं उमर बिन खत्ताब की बेगम हूँ, मैं आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब के लिए बनाई गई हूँ। जन्नत को देखा। बिलाल, अरे भाई बिलाल क्या हुआ? तू सारी जन्नत में मेरे आगे आगे, तेरे कदमों की आवाज, तेरे कदमों की आवाज, जिधर गया तेरे कदमों की आवाज, आगे 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 आगे। अरे बिलाल तो क्या है? या रसूल अल्लाह, क्या करते हो? तो या रसूल अल्लाह, जब वुजू करता हूँ 2 नफल पढ़ता हूँ, जब वुजू करता हूँ 2 नफल पढ़ता हूँ। वो तो बहुत सिर्फ ये बात नहीं थी, सिर्फ इतनी बात से जन्नत के आगे नहीं चल सकते। पूरी तारीख है। पत्थर पड़े अहल अहल, कोड़े पड़े अहल, थप्पड़ पड़े अहल, घसीटा गया अहल, गर्मी में खड़े किए गए अहल, अंगारों में लटाया गया अहल अहल, लोहे की जिरा पहना कर घसीटा गया अहल अहल। ये सिला मिला है। आपने वहां देखा कि बिलाल मेरे आगे आगे है, फिजिकली भी आपने कहा ऐसा ही होगा। जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी की लगाम बिलाल पकड़ के मेरे साथ साथ जन्नत में मेरे आगे चले। ये वापसी पे देखे, जाते हुए देखे, अल्लाह बेहतर जानता। ये देख, इससे अलावा भी देखा, इससे अलावा भी देखा।
सिदरतुल मुंतहा, या रसूल अल्लाह, आगे आप और आपका अल्लाह। फिर मेरे नबी जब मक्का से बैतुल मक़दस आए तो बशरियत, जब मैं मक्का से आसमानों तक गए तो मलकियत, आसमानों से सिदरतुल मुंतहा पर गए तो कुछ और निजाम, अल्फाज मेरे पास कोई नहीं। और जब सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए फिर कुछ और निजाम, उसके अल्फाज भी मेरे पास कोई नहीं है। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श, और अर्श आज पहली दफा झूम रहा है कि आज किसी हस्ती के कदम पड़ने वाले हैं, ये मोहम्मद मुस्तफा हैं। फिर उसके आगे लामकान शुरू होता है, 70,000 क्या नूर के पर्दे उठे और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हो गए। काबा कौसैन, ये है काबा कौसैन, ये काबा कौसैन है। ये एक कमान है, ये कमान है, और एक ये कमान है। ये तांत है जिस पर तीर रख के खींच के मारा जाता था। ठीक हो गया। ये जो किनारा है, किनारा कमान का, इसको काब कहते हैं, काब, और इसको कौस कहते हैं, कौस। तो अरबों में जब लड़ाई के बाद सुलह होती थी तो एक सरदार ये उठा, एक ये उठा, और अपने कमानों का रुख मोड़ के ये मिला दिया। तो ये काब, ये काब, ये कौस, ये कौस, ये निशानी। अभी हम जुड़ गए, मिल गए, आपस में मिल गए। मेरे अल्लाह ने ये मुहावरा अपने और अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया कि मेरे हबीब मेरे इतना करीब हैं जैसे कमानों के काब करीब होते हैं। और अगला तर्जमा करता हूँ, हकीकत अल्लाह जानता है। और अदना नहीं, मेरे महबूब इससे भी ज्यादा मेरे करीब गए। अब इसकी मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, हमें नहीं पता, हमें ईमान लाए। फिर गुफ्तगू हो रही है, फिर बातें हो रही हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम पेश किया जा रहा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात मेरे नबी की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये गुफ्तगू है। फिर वहां से आपकी वापसी हुई है। या लंबी बातें मैं वो छोड़ रहा हूँ। अच्छा, एक छोटी बता देता हूँ कि अल्लाह अपने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबी की, ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अपने मुर्दे जिंदा किए। मेरे लिए क्या है? तो उन्होंने कहा अवलैसा कद आतैतुक अफज़ल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया जो किसी को नहीं दिया। जी क्या? का अल्लाह दुकिरतु इल्ला दुकिरत मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, अब आप वापस आए तो जिब्रील को दोबारा देखा, 50 नमाजें लेकर। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब 50 नमाजें, कलीलन तैक। अल्लाह को भी पता है नहीं पढ़ सकते, मेरे नबी को भी पता नहीं पढ़ सकते, लेकिन तस्लीम और रज़ा लब्बै या हाज़िर। छठे आसमान पर पहुंचे। मैं वाज़े कर दूं, पहले मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मेरे दिल का ख्याल है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया होगा तो मूसा ये मेरा हबीब पढ़ा ले जाने पे ये लौरियां है कि नहीं पढ़नी, ना पढ़ा के तो पढ़नी। मेरे नबी ए मूसा, ये ना आप ऐसा करें, मेरे नबी को मेरे पास वापस भेजे। मुझे लगता है मुमकिन है मेरा ख्याल ठीक हो, चूंकि पीछे कोई किताबी ताईद नहीं, लिहाजा मैं ख्याल ही कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ। आगे मूसा अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह कैसी रही मुलाकात? का बड़ी अच्छी। क्या हुआ? 50 नमाज़ें का तौबा, कौन पढ़ेगा? वापस पेश। वो फिर पता नहीं कहां तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। या अल्लाह कुछ कम हो जाती तो अल्लाह ने एक दान, अच्छा अल्लाह पहले 5 क्यों नहीं दी, 50 क्यों नहीं, फिर 5 क्यों कम की, 45 क्यों नहीं कम की? मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम, सिर्फ ये बताने के लिए कि नमाज न छोड़ना बड़ी अहम चीज, नमाज न छोड़ना बड़ी अहम चीज। पहले रमजान में मस्जिदें भर जाती थी, अब रमजान में भी पहले 2 दिन भरते हैं, पर वही खाली साए सन्नाटा होगा आलम। नमाज न छोड़। मेरे नबी दुनिया में आते ही सजदे में गिर गए। दुनिया से जा रहे थे, कहते थे नमाज न छोड़ना। और 50 नमाजों का ऐलान है, ए उम्मत मोहम्मद, नमाज न छोड़। करबला कायम है और जोहर की नमाज का वक्त दाखिल हुआ। इमाम अली मकाम ने हबीब को बुलाया, ज़ुहैर को बुलाया, ज़ुहैर इनसे कहो शिमर से मुझे नमाज पढ़ने दे। अरे इमाम अली मकाम, आपको हम जरूरत नहीं नमाज की? नहीं, जरूरत है।
امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور یہ میں کلاس لے رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہزاروں بیلنگ قربان ہو سکتی ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں۔ تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے، اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کڑی گلے پڑھن دی ہے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45 کا نہیں بہت زیادہ، واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5۔ اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5۔ 5 بھی آئے، پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ جی آپ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5 کا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، اب واپس گیا تو یہ 5 بھی چلے گی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں آپ واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی۔ 5 کتنے پڑھیں گے؟ فاسٹ دا تنائی فاسٹ ہے، نہ بجے ہی رہنے پیسے مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑانا، ڈگری لبڑی، نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے ڈر گیا۔ 1972 43 سال ہو گئے اس بات۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں احتیاط میں بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے دے تو بہت سارا دے دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی۔